شین قریشی اور میں ہوں پلوش شاہ محمود۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے 27 برس مکمل ہو گئے۔ پاکستان نے آج ہی کے دن بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کا جواب دیا، خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا اور دفاع کا حق منوایا۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنائے کہ کسی کے آگے سر نہ جھکا سکے۔ پاکستان کے کامیاب ایٹمی دھماکوں کا اعلان وزیر اعظم جناب محمد نواز شریف نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ آج ہم نے 5 کامیاب ایٹمی تجربات کیے ہیں۔ اب ہمارے ملک پر کوئی دشمن انشاءاللہ بزدلانہ ایٹمی شبخون نہیں مار سکتا۔ 28 مئی 1998 وہ دن جب پاکستان نے دنیا کو بتایا کہ ہم ایک خود مختار، باوقار اور ناقابل تسخیر قوم ہیں۔ آگے کے پہاڑ گونج اٹھے اور دنیا نے پاکستان کو چھٹی اور مسلم دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت کے طور پر تسلیم کر لیا۔ یہ تھا جواب، بھارت کے ایٹمی دھماکوں کا پرعزم، فوری اور فیصلہ کن جواب۔ پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنائے کہ کسی کے آگے سر نہ جھکا سکے۔ وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت اور سائنسدانوں کی انتھک محنت نے وہ کر دکھایا جو کبھی ایک خواب تھا۔ I congratulate all Pakistani scientists, engineers and technicians for their dedicated teamwork and expertise in mastering complex and advanced technologies. ڈاکٹر عبد القدیر خان اور ان کی ٹیم نے تاریخ رقم کی۔ اس دن کو یوم تکبیر کا نام چودھری یعقوب ارائیں نے دیا، جن کا تعلق جلال پور بھٹیاں سے تھا۔ یوم تکبیر صرف ایٹمی طاقت کا دن نہیں بلکہ قومی اتحاد، غیرت اور خود انحصاری کا دن ہے۔ یوم تکبیر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم ایک مضبوط قوم ہے جو اپنے دفاع پر نہ سمجھوتا کرتی ہے اور نہ کرے گی۔ اس یوم تکبیر پر ہم اپنے ہیروز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے 27 برس مکمل ہونے پر قوم کو مبارکباد دی ہے۔ صدر مملکت نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھنے پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا ایٹمی طاقت بننا محض ہماری تکنیکی ترقی کا مظہر نہیں تھا، ایٹمی طاقت کا حصول قوت کے ذریعے امن قائم رکھنے کا دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ صدر زرداری کا کہنا تھا کہ بدلتی علاقائی سلامتی کی صورتحال میں ہماری جوہری طاقت ایک قابل اعتبار کم از کم دفاعی صلاحیت ہے۔ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت امن کی ضامن ہے۔ ایٹمی قوت ہماری خود مختاری اور قومی سلامتی کو یقینی بناتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جوہری پروگرام کے لیے بے پناہ قربانیاں دینے پر قوم، سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، ڈاکٹر عبد القدیر خان، سائنسدانوں اور انجینئرز کو سلام پیش کیا۔ وزیر اعظم نے افواج پاکستان، قومی اداروں اور ایٹمی پروگرام میں حصہ ڈالنے والے معماروں کو بھی سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ جوہری اثاثوں کی بھرپور حفاظت کرنے پر مسلح افواج کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پہاڑوں سے اللہ اکبر کی صدا آج بھی پاکستانی قوم کا عہد بن کر گونج رہی ہے۔ یوم تکبیر قوم کے اتحاد، آزادی اور خود مختاری پر سمجھوتا نہ کرنے کے اعلان کا دن ہے۔ یوم تکبیر کے 27 سال مکمل ہونے پر عسکری قیادت نے قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے مادر وطن کی دفاع کے لیے ہر خطرے کے خلاف اپنی ثابت قدمی کا اعتماد کیا ہے، اور ISPR نے یوم تکبیر پر مسلح افواج، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے پاکستان کے عوام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی ہے۔ ISPR کے مطابق یوم تکبیر 1998 میں اس تاریخی موقع کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان نے ایٹمی طاقت بن کر جنوبی ایشیا میں تصویراتی توازن بحال کیا اور اپنے دفاع خودی کے حق کا اظہار کیا۔ یہ عظیم کامیابی قوم کے عزم، اتحاد اور باوقار اور پرامن وجود کی مسلسل جدوجہد کی علامت ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ پاکستان کی تصویراتی صلاحیت قومی امانت ہے جو عوام کی اجتماعی امنگوں کی عکاس ہے۔ یوم تکبیر کی یاد منانا بصیرت افروز قیادت کے ویژن، ہمارے سائنسدانوں اور انجینئرز کی ذہانت اور ان سب کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے جنہوں نے پاکستان کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ مسلح افواج نے کہا کہ یہ دن پاکستان کے خود مختاری اور جغرافیائی سالمیت کے تحفظ کے لیے غیر متزلزل عزم کو اجاگر اور یہ ہمارے مستند
कम अज़ कम दिफाई हिकमत अमली के उसूल की तौसीक करता है जो खित्ते में अमन और तस्वीराती इस्तेहकाम के क़याम पर मबनी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने यौम तकबीर पर पैगाम जारी करते हुए मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने वाले साइंसदानों, इंजीनियर्स, मुसल्लह अफवाज और सियासी क़यादत को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। खासतौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जिन्होंने आलमी दबाव के बावजूद जौहरी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि यौम तकबीर कौमी खुदमुख्तारी, वक़ार और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है। उन्होंने कहा कि जब एक कौम मुत्तहिद हो, साइंसी बरतरी से लैस हो और अफवाज की हिफाजत में हो तो वो हर चैलेंज का सामना कर सकती है। बिलावल भुट्टो ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी खिराज अक़ीदत पेश किया, जिन्होंने जौहरी प्रोग्राम को महफूज रखने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि हमारा एटमी दिफा इन शोहदा की कुर्बानियों का नतीजा है और आने वाली नस्लों के लिए ढाल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अज़्म दोहराया कि इनकी जमात मजबूत, खुददार, महफूज पाकिस्तान के लिए हर मैदान में जदोजहद जारी रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से दो तरफ़ा मुलाकात हुई। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़रबाईजान के अवाम का पाकिस्तानी अवाम के साथ लाजवाल रिश्ता है। वज़ीर आज़म ने भारत के साथ हालिया तनाज़े के दौरान पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव का शुक्रिया अदा किया और बरादर मुल्क आज़रबाईजान की क़यादत और अवाम की जानिब से इज़हार यकजहती को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुकम्मल दायरा कार का जायज़ा लिया और पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफ़ती ताउन पर इत्मीनान का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद शोबों में सरमायाकारी के ज़रिए स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मतनू बनाने के लिए अपने मुश्तरका अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। आज़रबाईजान की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी की पेशरफ्त के हवाले से वफूद के तबादले पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में यह भी तय पाया कि दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात बहुत जल्द की जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ आंधी, तूफ़ान और बारिश से तबाही, 6 अफराद जान से गए, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं से मुतादिद दरख्त और बिलबोर्ड्स उखड़ गए, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। जुड़वां शहरों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मुजफ्फराबाद में नदी नाले में पड़ने से मुतादिद घर तबाह और दुकानों को नुकसान पहुंचा। मस्जिद भी शहीद हो गई। वादी नीलम, 8 मुकाम, कंडल, शाही समेत दीगर इलाकों में भी अब्र रहमत बरस पड़ा। सवाबी में आंधी और मूसलाधार बारिश हुई। घर की छत गिरने से बच्चा चल बसा। दरख्त और बिजली के पोल भी ज़मीन बोस हो गए। हरीपुर में भी जमकर बारिश हुई। तेज़ हवाओं से घर की दीवार गिरने से लड़का दम तोड़ गया। 2 अफराद ज़ख्मी। मर्दान, खैबर सवात, एबटाबाद में बारिश और यालाबारी से फसलों को नुकसान पहुंचा। मलके कौसार, मरी, अटक और नौशहरा में भी बादल खूब बरसे। बालाकोट और वादी का खान में बारिश और यालाबारी हुई। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश होने से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। 31 मई तक आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों का इम्कान है। और अब आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जवाब देते हुए कहा, मोदी बिलाखिर अपनी औकात पर आ गए हैं। बदकिस्मती से उनके जैसे लोग इक़्तिदार में आकर अपने मुल्क समेत पूरी दुनिया का अमन ख़राब करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोदी को अपने सामने सियासी मौत नजर आ रही है जो वाक़या हो चुकी। वो अभी तक सदमे में हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। इसके अलावा बानी PTI की बहन अलीमा खान के बयान पर ख्वाजा आसिफ ने कहा, अलीमा खान के लहजे में रास्ता ढूंढने की मामूली सी कोशिश है। इस पर गौर किया जा सकता है कि वो क्या चाहते हैं। ईद उल अज़हा करीब आते ही मुल्क भर में मवेशी मंडियों का मेला लग गया है। हर तरफ जानवरों की बहार है। कहीं पहाड़ी बकरों की छाप तो कहीं मोटे ताज़े बैलों की धाक। मंडी में कदम रखते ही जैसे एक रंग बिरंगी दुनिया आबाद हो गई हो। जानवरों के मुनफरिद नाम भी तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। हर जानवर अपनी शान में मस्त, हर खरीदार अपनी पसंद में गुम। कैटल फार्मर्स पे भी खूब गहमा गहमी है, जहाँ शहरी खूबसूरती, ताकत और कीमत का तवाज़ुन ढूंढते नजर आते हैं। सस्ता और शानदार का फॉर्मूला हर किसी की जेब और दिल की ख्वाहिश बन चुका है। बच्चों की चहकार, व्यापारियों की आवाज़ें और जानवरों की मस्ताना मौजूदगी ने कुर्बानी की रौनकों को दुबाला कर दिया।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अनोखी पेशकश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कनाडा अगर अमरीका का हिस्सा बन जाए तो वो उनका तजवीज़ करदा जदीद मिसाइल दिफाई सिस्टम गोल्डन डोम मुफ्त हासिल कर सकता है। अलबत्ता अगर कनाडा खुद मुख्तार रियासत के तौर पर बरकरार रहा तो उसे दिफाई सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए 61 अरब डॉलर्स अदा करना होंगे। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि उनका मुल्क 175 अरब डॉलर्स के मुजव्वज़ा मंसूबे में सरमायाकारी पर गौर कर रहा है। अलबत्ता कनाडा अमरीका में जम होने पर बिल्कुल तैयार नहीं है। गुज़िश्ता दिनों अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर मुल्की हमलों से अमरीका को बचाने के लिए एक नए मिसाइल दिफाई निज़ाम गोल्डन डोम के मंसूबे का ऐलान किया था और बताया था कि ये निज़ाम उनकी दूसरी मुद्दत सदारत के ख़िताम तक फ़ाल हो जाएगा। खेलों की खबरों में आपको बताएं, पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज आज से होगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान तीनों मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। मैच से कबल सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई भी की गई, जबकि दोनों टीमों ने लाहौर में भरपूर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान मैच रात 8 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई टीम आसान नहीं होती, बांग्लादेश अच्छी टीम है। बांग्लादेशी कप्तान लिटन दास का कहना था कि यकीन है कि किसी भी टीम को हरा सकते हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN।